Good morning again, and now let's start with ogives. Have you heard about this ogives? Ogives are also called as cumulative frequency curve. It is also called as cumulative frequency curve. Now, have you heard about the cumulative frequency? Okay. If you have not heard, then let me tell you, cumulative frequency का purpose क्या है? Now, ordinary frequency distribution do not give you value below or above a particular value. Simple. I take the data of marks obtained by students and number of students. So 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, and suppose the paper is out of 40 to 50, and I take some values here, frequency, number of students. So these are the random data prepared right now. Now this is a frequency distribution, but from this frequency distribution, I am not getting how many students have passed, how many students have failed, how many students have scored above 35, how many students are between say 25 to 35 or 45. Okay, so all these things I cannot retrieve from this. Now for such cases, I need frequency, cumulative frequency distribution. Okay. So this can give you, obviously this can give you the number of observations in a particular class interval. Okay, but this will not tell you how many are passing, how many are failing, how many are scoring good marks, what is the definition of good marks, above 35. Okay, so this thing cannot be obtained from this. So to solve this purpose, what we do? Find a cumulative frequency. And what is the cumulative frequency? It is the successive addition of frequency. Okay? Successive addition of frequency. Now there are cumulative frequency are two types. Already told you, so I write nicknames: LCF, less than cumulative frequency, and NCF, more than cumulative frequency. So how we calculate LCF? So LCF is calculated by adding successively the frequencies from top to bottom. What do you mean by top? Top means the lowest class interval, and bottom means the highest class interval. So if you are adding 2, that means 14. How you get this? 2 plus 12. Then 12. How much is 14? So 14 plus 28. How much that one? 42. And then 42 plus 13. So this is 55. And 55 plus 3. So it is 58. So at the end you will get a total frequency. So this is the successive addition from top to bottom. And here we consider the upper limits. Okay? How to interpret this data? How to interpret? How we read this? Less than. Can we say less than 0 to students? Because there is no negative marking. How can be possible? Less than 10 to students, less than 20, 14. Then less than 40, 51, less than 50, all students. So this is LCF. This gives you, in between using the graph, you can also find the values in between 20 and 30. जैसे कि 22 के बाद कितने हैं, या फिर 10 to 20 के बीच में अगर कोई वैल्यू लेते हो, जैसे कि पासिंग का क्राइटेरिया 18 मार्क्स है, तो आपको ये देखना है कि कितने लोग पास हुए, कितने स्टूडेंट पास हुए, तो अबाउट 18 देखना पड़ेगा, आपको यूज करना पड़ेगा NCF. अगर आपको ये देखना है कि कितने स्टूडेंट्स फेल हुए हैं, ताकि उनको आप स्पेशल ट्रेनिंग दे सके, स्पेशल ट्रीटमेंट दे सके, स्पेशल वर्क आप उसे उनको असाइन कर सके, ताकि वो नेक्स्ट टाइम पासिंग क्लास में आ जाए, तो आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कितने फेल हुए, तभी आप कुछ रेमेडी उनके लिए कर सकते हैं. तो आपको बिलो 18 देखना पड़ेगा. अब ये यहाँ पे तो नहीं पॉसिबल, इसके लिए आपको ग्राफ निकालना पड़ेगा. दैट इज बाय द नीड ऑफ ग्राफ. आप लेस देन 10, 20, 30, 40, 50 तो दिखा सकते हो, बट लेस देन 18 अगर दिखाना
इसलिए आपको एक ग्राफ की जरूरत है। या फिर अबाउट 22 देखना है आपको, अबाउट 25 देखना है आपको, तो वहां पे भी आपको ग्राफ की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे भी 0, 10, 20, 30, 40 मोर देन इस वैल्यू आपको बताएगा, बट 25 अगर देखना है तो ग्राफ की जरूरत, ग्राफ की जरूरत है। ठीक है, तो इसी चीज को सॉल्व करने के लिए, इसी पर्पस को सॉल्व करने के लिए हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व फाइंड आउट करते हैं। आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, तो जैसे कि अभी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दो टाइप के हैं, तो अब इनके कर्व भी दो टाइप के हैं। ओके, सो व्हिच आर दोस? सो फर्स्ट वन बेस्ड ऑन एलसीएम इज कॉल्ड एज लेस देन Augev curve or less than cumulative frequency curve. Okay, less than Augev or less than cumulative frequency curve, less than cumulative frequency curve, or based on MCF, based on MCF इस कौन सा कर्व लेंगे हम? more than Augev or more than cumulative frequency curve, more than cumulative frequency curve। more than की जगह आप greater than भी वर्ड यूज कर सकते हो। many standard books are having greater than cumulative frequency curve। okay, now एक चीज तो आपको समझ में आया है। ओके, सिर्फ इन्हीं का आगे जाके जो ग्राफ हम बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? Augev curve। ओके, तो यहाँ एलसीएम की कैलकुलेट कर लेते हैं, ताकि जब हम ग्राफ बनाएंगे तो अपने पास डेटा होगा। तो 3 will tell me 3 plus 13, so 16 plus 28, how much? It is 44. Okay, 44 plus 12, how much? 56, and 56 plus 2 means 58। so आगे का एनालिसिस हम ये ग्राफ के थ्रू करेंगे। ठीक है, व्हाट इज दिस? सबसे पहले मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखूंगा। नाउ व्हाट यू आर स्टडीइंग, यहाँ पे बहुत सारी चीजें अभी मैंने एक्सप्लेन किया है। तो अभी हम पर्टिकुलरली आ रहे हैं लेस देन ऑगिव यानी कि लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, और मोर देन ऑगिव यानी कि मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। इनके बीच का डिफरेंस हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले पॉइंट होगा कंस्ट्रक्शन। How these are constructed? इनको कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, इनको हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। अब जैसे कि मैंने बताया लेस देन के लिए अपर लिमिट हम देखते हैं। ओके, तो इसका कंस्ट्रक्शन कैसे रहेगा? टेक अपर लिमिट्स और अपर क्लास बाउंड्री ऑन एक्स एक्सिस, ओके, along with respective LCF values। which values? LCF। लेस देन ऑगिव अगर आपको ड्रॉ करना है, लेस देन ऑगिव अगर आपको ड्रॉ करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपर लिमिट और अपर क्लास बाउंड्री आपको एक्स एक्सिस पे लेना पड़ेगा, और साथ में LCF वैल्यू। ओके, पॉइंट्स सो प्लॉटेड, जो पॉइंट्स प्लॉट होंगे उनको आप क्या करेंगे? ज्वाइन विद स्मूथ। अदर्स कैन राइट दिस। ओके, स्मूथ कर्व। तो ये पहला पॉइंट रहेगा कि ये कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे, ये कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे, लेस देन ऑगिव कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे कि हम अपर लिमिट एक्स एक्सिस पे लेंगे और एलसीएफ हम वाई एक्सिस पे लेंगे। टू ड्रॉ द ग्राफ, इसका हम एक बार ये पॉइंट को समझ लेते हैं। तो मोर देन ऑगिव क्या है, हमको रेसिप्रोकेट करना है, वो उसका जस्ट एग्जैक्टली द अपोजिट। तो हम लेस देन ऑगिव के पॉइंट अगर समझ लेते हैं तो वो पॉइंट पे हमको इजीली समझ में आएंगे। तो इसको हम पहले क्लियर कर देते हैं। ठीक है, तो लेस देन ऑगिव का ग्राफ कैसे रहेगा? हाउ, व्हाट काइंड ऑफ ग्राफ विल बी देयर? इसका ग्राफ कैसे दिखेगा? कैसे? इसका ग्राफ कुछ इस तरह से दिखेगा। एक्स एक्सिस पे क्या रहेगा? एक्स एक्सिस पे अपर लिमिट या फिर अपर क्लास बाउंड्री रहेगा। ओके, और यहाँ पे क्या रहेगा? LCF
यहाँ पे क्या रहेगा, LCF रहेगा, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, आपको एक वर्कआउट करना पड़ेगा। मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूँ। जब भी आप लेस देन ऑडियो ड्रॉ करोगे ना, तो एक छोटा सा काम कर देना, ये टेबल बना देना, इसे हम लेस देन फ्रीक्वेंसी टेबल कहेंगे, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो इसमें क्या लेना, अपर लिमिट लेना, सभी का अपर लिमिट लेना। जब आप लेस देन ऑडियो ड्रॉ बनाओगे तो सबसे पहले 1 मिनट भी नहीं लगेगा, इसको 10 सेकंड लगेंगे आपको। तो अपर लिमिट ले लेना यहाँ पे 10, 20, 30, 40 एंड 50। ओके, और उसके रिस्पेक्टिव एलसीएफ वैल्यूज ले लेना, तो आपको प्लॉटिंग करने के लिए बहुत इजी हो जाएगा। ओके, तो क्या वैल्यूज है उसके, एलसीएफ वैल्यू क्या है, 2, 14, 42, 55 एंड 58। तो अभी प्लॉटिंग करना बहुत आसान हो गया है। यहाँ पे स्केल प्रॉपर आपको लेना है, डू नॉट फॉरगेट द स्केल, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। स्केल यहाँ पे लेना है, एक्स पे क्या है, वाई पे क्या है। ओके, ये सब चीजें डिफाइन करना है। अब यहाँ पे 10 यहाँ पे रहेगा, तो आपको ये पॉइंट प्लॉट करना है। ठीक है, यहाँ पे स्केल क्या रहेगा, अभी 2 to 58 है, तो आप 10 का स्केल यहाँ पे भी ले सकते हो, 10 0 to 60 यहाँ पे रहेगा। तो फाइनली जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ये ग्राफ आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऐसे कुछ दिखाई देगा, क्योंकि आप ऑब्जर्व कीजिए ये डेटा जैसे जैसे अपर लिमिट बढ़ रहे हैं, ये वैल्यूज भी बढ़ रहे हैं। These are in increasing order। ये भी अपना एक ऑब्जर्वेशन है, ये भी अपना एक ऑब्जर्वेशन है। दिस इज आल्सो वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। नेचर कैसा है इसका, ये ग्राफ का नेचर कैसा है, इंक्रीजिंग। बाय चांस अगर कोई फ्रीक्वेंसी 0 होती है तभी ये कांस्टेंट रहेगा, पर नीचे नहीं आएगी। ये ग्राफ कभी नीचे नहीं आएगा। फ्रीक्वेंसी अगर कहीं पे 0 है, यहाँ पे कहीं भी 0 है, तो वो स्ट्रेट लाइन आएगा, नीचे नहीं जाएगा वो। अंडरस्टैंड माय पॉइंट, ऑल ऑफ यू? ओके, तो इसका ग्राफ कैसे आना चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर पे आना चाहिए। ये बढ़ते ही जाएगा, ये कम नहीं होगा। ये आप देख सकते हो, ये अपर लिमिट बढ़ रही है, ये 10 पे 2 है, 20 पे 14 है, 30 पे 42 है, 40 पे 55 है, तो ये बढ़ते ही जाएगा ग्राफ। अंडरस्टैंड माय पॉइंट? तो ये पॉइंट अगर क्लियर हो गया तो आपको ऑडियो लेस देन ऑडियो का समझ में आ गया। अगर ये समझ में आ गया तो ये दूसरा भी पॉइंट आपको डेफिनेटली समझ में आ गया, क्योंकि वो जस्ट अपोजिट टू इट है। इसका यूज कहाँ पे करते हैं, इतना ही मैं बताऊंगा अभी। यूज इसका यूज कहाँ पे लेस देन ऑडियो का, जैसे कि आपको देखना है कि बिलो पॉवर्टी लाइन कितने स्टूडेंट्स हैं, या फिर बिलो पॉवर्टी लाइन कितने फैमिलीज हैं, इजंट इट? ओके, तो इन तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं जो रियल लाइफ में आप देखते हो, उनको आप लेस देन ऑडियो ड्रॉ करके आप ये कर सकते हो। मान लो कि यूथ की संख्या है, तो लेस देन अंडर ग्रेजुएट कितने हैं, आपके पर्टिकुलर लोकेलिटी में आपने अगर एक सर्वे किया एज पर द एजुकेशन लेवल कि कितने लोगों ने प्राइमरी एजुकेशन है, आपके एरिया में 100 लोग आप रैंडमली सिलेक्ट करो, आप विजिट करो, उसका कलेक्शन करो डेटा कि एजुकेशन के ऊपर उनका एजुकेशन लेवल क्या है। आप कुछ ऑप्शंस क्रिएट कीजिए, प्राइमरी, नॉट लिमिटेड, प्राइमरी, फिर सेकेंडरी। ओके, उसके बाद प्राइमरी यानी कि 5th स्टैंडर्ड, फिर सेकेंडरी यानी कि 10th हम कंसीडर करेंगे, जूनियर, फिर डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट एंड अदर। तो इस तरह से अगर आपको डेटा मिलेगा तो आपको कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसीज मिलेंगी कि 100 में से इतने इलिटरेट है, 100 में से इतने प्राइमरी है, 100 में से इतने ग्रेजुएट है, तो उनका फिर आपको देखना है कि लेस देन अंडर ग्रेजुएट कितने हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन आप इससे सॉल्व कर सकते हैं। या फिर आपको ये भी देखना है कि अबव ग्रेजुएशन कितने लोग हैं, अगर अबव 12th कितने हैं HSC, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। आई थिंक यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट। तो यहाँ पे लेस देन वाले जो कैलकुलेशन है, लेस देन पर्टिकुलर वैल्यू देखना है आपको। जैसे लास्ट में मैंने बोला 80, तो ये ग्राफ पे आप क्या करो, 80 प्लॉट करो।
मैंने लास्ट टाइम बोला था आपको कि 18 पे कैसे देखेंगे, ग्राफ के थ्रू। तो अभी ग्राफ हमने ड्रॉ कर लिया, एक रैंडम ग्राफ हमने ड्रॉ कर लिया। तो आपको क्या करना होता है, 18 आपने बोला ना लेस देन 18 देखना है, तो 18 पे आप एक पॉइंट बनाओ, सर्कल कर दो, यहां से पैरेलल लाइन ड्रॉ करो y एक्सिस को, पैरेलल लाइन पैरेलल को दिस। चलो ये स्केल भी काम आ जाएगी अपने। यस, सो यहां पे पूरा लाइन जो है पैरेलल ड्रॉ करो, ठीक है, ये इसको पैरेलल होना चाहिए, ओके। और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये अभी परपेंडिकुलर है, दिस इज द परपेंडिकुलर। अब यहां पे जो भी वैल्यू होगी ना वो आपका आंसर है, लेस देन 18। मैं अंदाजे से लिखता हूं, लेस देन 18, मान लो कि यहां पे 11 है, जैसे कि एज्यूम यहां पे वैल्यू क्या मिल रही मुझे ग्राफ पे 11, तो इसका मतलब लेस देन 18 कितने हैं। तो क्या किया मैंने क्या किया, जिस वैल्यू के नीचे हमको ऑब्जर्वेशंस देखना है वो वैल्यू को मैंने पॉइंट किया, लेस देन 18, तो मैंने एक्स एक्सिस पे 18 को प्लॉट किया, समझ में आया। फिर वहां से मैंने लाइन पैरेलल ड्रॉ किया y एक्सिस को, फिर यहां से परपेंडिकुलर किया, यहां पे परपेंडिकुलर का साइन देखना है, यहां पे जो भी पॉइंट आएगा वो आपका आंसर रहेगा, लेस देन 18 दिस स्टूडेंट। मान लो कि लेस देन 30 देखना है आपको, ये पैरेलल लाइन ड्रॉ किया और यहां से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो लेस देन 30 मान लो कि 46 स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो वैल्यू है ना वो 46 है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, लेस देन 30 देयर आर 46 स्टूडेंट्स। गॉट माय पॉइंट एवरीबॉडी, दिस इज जस्ट फॉर एक्सप्लेनिंग। Now are you ready to get the other points? Yeah. अब आप लोग खुद भी बता सकते हो इसको, ठीक है। So let's come to this. Now how it can be constructed? Yes, it can be constructed. What you have to do? Take lower limits. What you have to take? X-axis पे take lower limits or lower class boundary. You have to take lower class boundary. Why class boundary? Sometimes every time you will not get continuous data. Sometimes it will be discontinuous. So that time you should understand you have to find the class boundary. So when you find the class boundary, you have to take the lower class boundary for more than a bit. Okay? And what you take on y-axis, you will take NCF values. Now again, we prepare the same table for this. Okay? So this is the construction. Take lower limits or lower class boundaries on x-axis along with respective NCF. Points so plotted are joined with smooth curve. So this is the construction. Now, how its graph will look like? How its graph will look like? Before we draw the graph, again we need a table. How to construct this graph? Now you can directly take the values here also, but then maybe some students may get confused what value. Lower limit की जगह पे अगर उन्होंने upper limit ले लिया तो गड़बड़ हो जाएगा. So I suggest all my students to prepare this table. It will not take more than 10 seconds or 15 seconds. Okay? But it is very useful. So now you will tell me the values, right? All have to say along with me which are the values there. First of all, I write lower limit 0, 10, 20, 30 and 40. Okay? Now tell me what values to take because you can see there. Yes. What to take here? 58. Okay. 58. Then 56. Very good. 44. 16. Huh? 16. Okay, then 3. So clearly observe as the lower limits increasing, these NCF values are decreasing. इनका नेचर कैसे अपोजिट है, एक बढ़ रहा है एक घट रहा है. So what the graph will look like? Yes, it will go downwards. This kind of nature you can observe here. Okay, this kind of nature will observe. Only and only when frequency somewhere is 0, that time it will be a straight line.
but it will not means it will be what? Decreasing in nature. Okay? So there should be lower limit or lower boundary, and here MCF. So this is called as less than obtuse curve. This is called as more than obtuse curve. And what is the nature of this graph? The nature of this graph is, what is the nature? Decreasing. As you can observe, it is. Can you define a line from this? The nature of the more than obtuse curve is decreasing, or more than obtuse curve is decreasing in nature. Okay? So you can easily define it. Now, what is the use? What is the use of this? When you want to find out the number of observations above particular, means suppose I want to see how many students sitting here are above each class, or I define some limit about 10 lakh per annum family. So about 10 lakh per annum, अगर किसी का income है तो हम उसे ये कहेंगे. तो how many students are there whose family having income above 10 lakh per annum? So I can call them rich class, isn't it? In the previous example, you collected the data, imaginary data. How many are in the primary, secondary education, undergraduate, postgraduate. Suppose I want to see how many are cleared 12, are above 12 standard. So that time also more than obtuse. Okay? Graduation education level 12 के नीचे या फिर 10 के नीचे below अगर देखना है तो less than obtuse. अगर above देखना है तो आपको more than obtuse का use करना पड़ेगा. Is that clear to all of you? This is the data on marks of student, marks 0 to 10 up to 40 to 50, and number of students are there. Now you have to construct two graphs, less than obtuse and more than obtuse, that is more than cumulative frequency. First of all, you have to construct less than cumulative frequency and more than cumulative frequency. Okay? So let's get that. So how is the LCM? 5, then 5 plus 12, 17, 17 plus 43, 16, 60 plus 32, 92, and it is 100. It means there are 100 students. If you calculate here total number of students, so it will be 100. You always get total frequency at the end when you calculate MCF. Okay? Now, MCF, more than cumulative frequency is calculated from the bottom to top, means highest class to lowest class. So 8, then 8 plus 32, 40, 40 plus 43, 83, then 83. So this is 95 and finally 100. So here you will get total frequency, and for MCF you will get at the very top. You will get the total frequency. Now we will come to the first task. Now there are certain questions. There are 4 questions. We will answer one by one. Now this one is the first question, and depending on this, there is this question, right? So let's sequence it. आपने लेस देन obtuse curve या फिर लेस देन cumulative frequency curve ये किया तो आप तुरंत इसको आंसर करेंगे, वही हम करेंगे. So 1, 2, and when you do this, you call it 3, and then immediately we answer how many are above 35, so we call it 4. Okay? So there are 4 different questions, 2 graphs you have to construct. Okay? Now, first of all, less than cumulative frequency curve or less than obtuse. Before starting the graph, as I told you or suggest you, first of all get the table. So what is the table? It will take less than 30 seconds. Sorry, it is upper limit. So what are the upper limits of each class interval? 10,
20, 30, 40 and 50. Okay? Now notice the values. Again student, it is 5. So write down it. So 5, 17, then 16, then next 92 and finally 100. So everybody got this? When you prepare this, this is called as the less than cumulative frequency table. It is not just frequency table, it is less than cumulative frequency table. यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा करना क्या है, x पे क्या करना है, y पे क्या करना है, ये सब क्लियर हो जाएगा कौन सी वैल्यू प्लॉट करना है। अदरवाइज अगर ये नहीं करते हो तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है, और मान लो कि आप जल्दी में हो, टाइम कम है, तो गलती से क्या हो जाएगा, जहाँ पे अपर लिमिट लेना हो आप लोअर लिमिट कंसीडर कर दोगे तो गलत हो जाएगा। मे भी आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर से ग्राफ मिलेगा, बट आपने क्या बेसिक चीज आप फॉरगेट कर दिए, बेसिक चीज आप भूल गए कि वहां पे 5